Hello students, today in this video we learn about articles. We all know what are articles a and the. There are three rules to use these articles. Let's see what are they. Rule 1. Where we use indefinite article a or an or the definite article the. A. It is an indefinite article and it is used with consonants. And we all know that all the 21 letters remaining after the 5 vowels are known as consonants. Here is an exception that we use a before the sound u, eu and u. Let's see the examples. A university, a European city, a unicorn. Here जो हमारा वर्ड है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसका साउंड जो है वो यू है, वॉवल साउंड नहीं है, इसलिए हम उसके आगे अ यूज करेंगे. And it is an indefinite article again, but it is used with the a, e, I, o, u. That means vowels. Here is a small diagram showing consonants or vowels क्या होते हैं. There are 5 vowels in English alphabet a, e, I, o, u और उसके बाद में जो 21 remaining letters होते हैं they are known as consonants. अब यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है कि हम एन को with a silent h use करते हैं. That means if a word is beginning with the letter h but does not have the sound of h. Let's see some examples and understand this. We use an with an honest student. So here h is silent and the sound is of vowel o. An house, an R. We use the with a specific object. For example, मैं आपको किसी चीज़ के बारे में बता रही हूँ. For example, we are talking about our class or something which I and you both knows. That means I am the speaker, मैं बोल रही हूँ, you are the listener, आप सुन रहे हो, और हम दोनों को हम एक चीज़ के बारे में पता है. We are particularly talking about something. So that object, that specific object, उसके साथ में हम the use करेंगे. So the is the definite article. Now here's the rule 1 with indefinite article and definite article. Indefinite article, a previously unknown noun that is being introduced into a dialogue or a story. That means हम जब a और an यूज करते हैं जहाँ पे हमें पता नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव सेड दैट आई हैव अ कार. मैंने आपको डायलॉग, ये मेरा डायलॉग है, मैं बोल रही हूँ आई हैव अ कार. अब उस कार के बारे में अभी यू डोंट नो, ओनली आई नो. ठीक है, अनस्पेसिफाइड है इसलिए मैंने अ यूज करा. वेयर एज कि अब वो जो नाउन है वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गया, अब आपको पता चल गया है कि मेरे पास कार है. सो द नेक्स्ट टाइम आई कैन से दैट आई कम बाय द कार, मैं कार से आती हूँ. ओके, now can you spot the articles in these 4 lines? Try to find some articles in here. I saw a cat. The cat was sitting on a fence. The fence was painted brown. The cat jumped off the fence when it saw a mouse. The mouse ran into a hole when it saw the cat, so the cat didn't catch the mouse. I hope you all have found some articles in here, and if not, let's see the answers. So you can see that यहाँ पे cat जब
स्टोरी में इंट्रोड्यूस हुई है तब हमने उसके आगे अ यूज करा है, आई सॉ अ कैट। नाउ अब कैट रिपीट हो रही है, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, अब उसके बारे में आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, तो हेयर इट कम्स लाइक द कैट वॉज सिटिंग ऑन अ फेंस। फेंस न्यू आया, अ यूज किया, वेयर एज नेक्स्ट टाइम में द फेंस हो गया बिकॉज इट हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड। फिर कैट है तो दोबारा द, फेंस है तो दोबारा द। अब माउस, जैसे ही फर्स्ट टाइम माउस के बारे में बात हुई तो हमने अ यूज किया, और जब हमने उसको रिपीट करा तो द माउस यूज करा। होल के साथ में हमने अ यूज करा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। सो आई होप नाउ यू आर सो क्लियर ऑफ कि आपको द कब यूज करना है और अ कब यूज करना है इन द स्टोरीज और इन सम डायलॉग्स। So here's the rule number 2, that when a noun is unique, use a definite article. If we are talking about some particular specific proper noun, तो हम लोग वहाँ पे definite article use करेंगे, और हमारा definite article क्या है? The. The sun, the president, the queen of England. So they are the specific objects, they are the proper nouns, और इसलिए हमने इनके आगे the use किया है। Okay, so here is like, अगर हम लोग एक जनरल टर्म में बात करें, हु इज शी इज एन अकाउंटेंट, शी इज अ टीचर, शी इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमने इनके साथ में अ यूज करा है। बट जब हम लोग किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं तो हमने क्या यूज करा? हु इज ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ कोरिया, ही इज द सीईओ, ही इज द मेयर। सो यहाँ पे हम लोग बहुत स्पेसिफिक और पर्टिकुलर लोगों की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने उनके आगे द यूज किया है। The uniqueness can come by association. अब association का यहाँ पे मतलब क्या है? Let's see. A car crashed into a tree. हमने यहाँ पे कार के साथ अ यूज किया है। The driver was seriously injured. एक कार पेड़ से टकरा गई है और जो ड्राइवर है वो सीरियसली इंजर्ड है। यहाँ पे एसोसिएशन किस किस के बीच में? एसोसिएशन मतलब लिंक किस किस के बीच में? कार और ड्राइवर के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूनिकनेस किसको दी है? ड्राइवर को यूनिक बना दिया कि ड्राइवर इंजर्ड है। ठीक है, अब हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। वी कुड हैव री रिटन दिस सो दैट ड्राइवर वॉज नॉट यूनिक। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ड्राइवर यूनिक ना हो, कार यूनिक हो जाए? तो जब वो इंट्रोडक्शन हो रहा है उस न्यूज़ हेडलाइन का या उस न्यूज़ का फ्लैश हो रहा है, तो अब हम उसमें, अभी तो था कि अ कार क्रैश्ड इनटू अ ट्री, द ड्राइवर वाज सीरियसली इंजर्ड। यहाँ पे पता चला कि एक कार जो है वो टकरा गई है पेड़ से, लेकिन जो ड्राइवर है वो बहुत सीरियस है। नाउ लेट्स सी द अनदर एसोसिएशन सेंटेंस। A driver was seriously injured when the car he was driving crashed. एक ड्राइवर को बहुत ज्यादा चोट लगी जब वह कार चला रहा था जो पेड़ से टकरा गई। सो हेयर इज द लिंक बिटवीन कि हमने एक को यूनिक कर दिया, एक को यूनिकनेस नहीं दी। A driver can only be driving one car at a time. So, car is unique in the instance once driver was introduced. अब कोई भी ड्राइवर है, अगर वो कार ड्राइव कर रहा है तो ऑब्वियसली वो एक ही कार ड्राइव करेगा। तो उस टाइम पे जो कार है वो यूनिक हो सकती है अगर हमने एक बार ड्राइवर को इंट्रोड्यूस कर दिया तो। Now let's see the rule number 3. When we are speaking of a noun in general, we usually leave the article out. If it is countable, use the plural form. See, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कोई जनरल नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम आर्टिकल को यूज नहीं करते हैं, और अगर काउंटेबल नाउन है तो हम उसका प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं। Let's understand this with some examples. So, for example, when we are talking about an actual cookie or cookies that really exist or existed, we use an article definite or indefinite. अब यहाँ पे अगर हम किसी कुकी या कुकीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो सच में है या थी थोड़े टाइम पहले तक,
तो हम डेफिनेट या इंडेफिनेट कोई भी आर्टिकल उसके साथ यूज करेंगे। ठीक है, कैसे? In the following examples, we are speaking of specific, actual, real cookies. ठीक है, असली cookies क्या है? I ate a cookie. मैंने एक cookie खाया. The cookie was delicious. कुकी, वो जो कुकी थी वो बहुत डिलीशियस थी. द कुकीज आर ऑन द टेबल. जो कुकीज हैं वो टेबल पर रखी है. When we can also make general statements about cookies, we leave the article आउट. अब यहाँ पे हम लोग बहुत जनरल स्टेटमेंट के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर कुकी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. हो सकता है पिछले उसमें वो चॉकलेट कुकी के बारे में या अमेरिकन नट्स के बारे में बात कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे वो जनरल कुकी के बारे में बात कर रहा है कि आई लाइक कुकीज़, मुझे कुकीज़ पसंद है. आई इंजॉय मेकिंग कुकीज़, मुझे कुकीज़ बनाने में मज़ा आता है. आई नेवर ईट कुकीज़ एट नाइट, मैं कभी भी रात को कुकीज़ नहीं खाता या खाती हूँ. सो है, हमने आर्टिकल्स को छोड़ दिया. द मीनिंग विल बी डिफरेंट इन ईच केस. अब दोनों ही केसेस में मीनिंग डिफरेंट है. कैसे? आई लाइक कुकीज, अ जनरल स्टेटमेंट कंसर्निंग कुकीज. कुकीज के बारे में जनरल स्टेटमेंट है कि मुझे कुकीज पसंद है. आई लाइक द कुकीज, अ स्टेटमेंट अबाउट सम स्पेसिफिक कुकीज दैट आई हैव एक्चुअली टेस्टेड. मैंने वही बोला कि हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर कुकी के बारे में बात कर रहा हो, इसीलिए उसके आगे हमने द लगाया है. तो किसी स्पेसिफिक कुकी जो हमने टेस्ट करके उसके बारे में वहां पे बात हो रही थी. कुकीज आर बैड फॉर योर हेल्थ. कुकी इज काउंटेबल एंड देयरफॉर पुट इन द प्लूरल. अब यहाँ पे हम ये बोल रहे कि कोई भी जो कुकीज होती हैं वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं, तो वो काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे कुकीज कर दिया. नाउ पिज्जा इज बैड फॉर योर हेल्थ, बट पिज्जा जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने पिज्जा को पिज्जा ही रहने दिया. नाउ हेयर आर सम डूज एंड डोंट्स जो आपको आर्टिकल्स को यूज करते समय ध्यान रखना है. लेट्स सी. Use an article with bodies of water, oceans and seas. My country borders on the Pacific Ocean. अगर हम किसी वाटर, ओशन या सी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके आगे आर्टिकल यूज करेंगे and that article will be the. We use a or an before 100, 1000 and million. I have 100 fishes at home. हम जब भी 100, 1000 या मिलियन अपने सेंटेंस में कहीं पे भी यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करेंगे एंड दीज आर ए एंड एन. We use a or an to refer to jobs or occupations. I recently changed to a teaching job. ठीक है, जब भी हम किसी के जॉब और ऑक्यूपेशन के बारे में बात करेंगे तब हम a और an का यूज करेंगे. अब डोंट्स देखते हैं. आर्टिकल्स को यूज करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना होता है और क्या नहीं करना होता है. He lives in Washington. It is the example. Do not use an article with countries, states, counties or provinces, lakes and mountains except when the country is a collection of states such as the United States. Okay, so हम articles को countries के साथ, states के साथ, counties के साथ, provinces के साथ, lakes के साथ, mountains के साथ में use नहीं करते हैं. ओके, सिर्फ और सिर्फ तब यूज करेंगे जब वो जो कंट्री जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स है, द यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पे हम द यूज कर सकते हैं. उसके अलावा द इंडिया नहीं होगा, द पाकिस्तान नहीं होगा, द चाइना नहीं होगा. कूल. डू नॉट यूज एन आर्टिकल व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट थिंग्स इन जनरल. अगर हम किसी जनरल चीज के बारे में बात कर रहे हैं लाइक शी लाइक्स डांसिंग, शी लाइक्स रीडिंग बुक्स, तो हम शी लाइक्स रीडिंग द बुक्स नहीं होगा, शी लाइक्स रीडिंग बुक्स होगा. तो हम जनरल स्टेटमेंट में द का यूज नहीं करेंगे. डू नॉट यूज एन आर्टिकल व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट मील्स, प्लेसेस एंड ट्रांसपोर्ट. जब भी हम मील्स, प्लेसेस या ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे होंगे तब हम द का यूज नहीं, मतलब कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. लाइक ही कम्स टू वर्क बाय टैक्सी, वे टैक्सी बाय द टैक्सी नहीं होगा. शी इज हैविंग लंच, शी इज हैविंग द लंच नहीं होगा.
So kids, it is all for today. I hope you are clear of what the article is and are, and you are very clear of the usage of it. Keep practicing. Happy learning.